اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی، اسپتال پر بمباری، کم از کم 500 فلسطینی شہید ہو گئے، ڈاکٹر، عملہ، خواتین اور بچے نشانہ بنے، اسپتال میں سینکڑوں زخمی اور بیمار موجود تھے، بڑی تعداد بے گھر افراد کی بھی تھی۔ دہشت گرد ریاست نے اس سے پہلے رفح میں امدادی سامان کے گودام پر بھی بمباری کی، 80 سے زائد فلسطینی جان سے گئے۔ سہوری ریاست کی وحشیانہ بمباری سے شہداء کی تعداد 3500 سے زائد ہو گئی، 13,000 زخمی، تباہ عمارتوں کے ملبے تلے اب بھی ہزاروں فلسطینی پھنسے ہیں، امدادی ٹیمیں ناکافی، شہری ہاتھوں سے ملبہ کھود کر لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں۔ غزہ کو خوراک، بجلی، پانی اور ایندھن کی فراہمی بدستور معطل، ایندھن ختم ہونے سے اسپتال بند ہونے لگے، لاشیں رکھنے کی جگہ، زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں، زخمی فلسطینی سسک کر موت کے منہ میں جانے لگے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ چیئرمین PTI نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا، سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان۔ سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ چیئرمین PTI کی ہدایت پر دی۔ چیئرمین PTI نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلان بنایا۔ سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فارن سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا، کہا 9 مارچ کو سائفر کی کاپی وزیر اعظم کے حوالے کریں۔ چیئرمین PTI نے 9 مارچ کو سائفر پر رائے دی۔ شاہ محمود قریشی معاملے پر چیئرمین کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کو کہا۔ سائفر کیس میں سابق سفیر اسد مجید بھی چیئرمین PTI کے خلاف گواہ بن گئے۔ اسد مجید کا 161 کا بیان سامنے آ گیا، کہتے ہیں سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا، ہمارے سفارتکار اور ان کی مستقبل کی سفارتکاری کی ساکھ پر بھی اثر پڑا۔ سائفر کیس کے ملزمان پر فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد ہوگی۔ FIA نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں چالان جمع کرا دیا۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار، دونوں کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا۔ چالان کے مطابق چیئرمین PTI نے سائفر اپنے پاس رکھا، اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین PTI کی معاونت کی۔ سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے تک تمام چین گواہوں میں شامل سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق سفیر اسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود گواہوں میں شامل۔ اڈیالہ جیل میں سماعت، ملزمان کو چلان کی نقول دی گئی۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں جو کاپی فراہم کی گئی اس میں سائفر سرے سے موجود ہی نہیں، تو ٹرائل کس بات کا؟ جنگ کوئی بھی جیتے مائیں ہار جاتی ہیں۔ غزہ کے اسپتال سے دل دہلا دینے والا منظر، ایک ماں نے 2 بچوں کی شہادت پر نوحہ کنا، بچوں کے بے جان جسم سے لپٹ کر روتی رہی۔ ڈاکٹر نے بے جان جسموں پر نام اور ایک نمبر لکھ دیا۔ ماں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ غزہ میں ہر 10 منٹ بعد ایک بچے کی شہادت ہو رہی ہے۔ غزہ میں آدھی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اب تک 1000 سے زائد بچوں کی جان لے چکی ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں، یہ تو کوئی زندگی نہیں۔ روتے بلکتے 9 عمر فلسطینی لڑکے کا اسرائیل کی جارحیت پر خاموش عالمی برادری سے سوال۔ لڑکے نے بتایا وہ ننھے بھانجے کے لیے گیند لینے گیا تھا، اسرائیل نے گولہ باری شروع کر دی، ان کا بھانجا زخمی ہو گیا، زخمی بھانجے کو گود میں اٹھائے گھر پہنچا۔
तो बदमस्त इसराइली फजाइया ने फिर बमबारी कर दी। मजबूरन पनाह लेने पड़ोसी के घर जाना पड़ा, लेकिन वो तो पहले ही तबाह हो चुका था। सहन में पड़ोसियों के बच्चे की लाश पड़ी थी, जिसका सर तन से जुदा था। मगरिब ने अमन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसराइल फलस्तीन जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे, हक में सिर्फ 5 वोट डाले गए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत की। 6 रुकन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया मुंतजिर थी कि सलामती कौंसिल खूनरेजी के खात्मे के लिए इकदाम करेगी। अमेरिका की दोगली पॉलिसी, एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ इसराइल भेजने के लिए फौज तैयार कर ली। पेंटागन का कहना है 2000 अमरीकी फौजी इसराइल में तैनाती के लिए तैयार हैं। मशरिक़े वुस्ता में बदलती सूरत हाल की वजह से फौजियों को तैयार किया गया। इसराइल ने गजा पर बमबारी बंद न की तो मज़ाहमती तहरीकों को कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतबाह, कहा सेहूनी हुकूमत तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दौरान अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। ईरान का गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए फौरी राहदारी खोलने का मुतालबा। सऊदी काबीना का कहना है फलस्तीनियों की गजा से जबरी नकले मकानी कबूल नहीं करेंगे। सऊदी अरब का गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कनाडा का गजा के लिए $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी के तौर पर गजा के लिए राहदारी का मुतालबा। कैनेडियन वजीर आजम कहते हैं संगीन इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश है। मिस्री सदर ने कहा इसराइल इमदादी सामान के ट्रकों को गजा में दाखिल नहीं होने दे रहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। खत्ते की मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। अनवारुल हक काकड़ बोले इंसदादी दहशतगर्दी के लिए रूस और पाकिस्तान यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए भी 2 तरफा ताउन अहमियत का हामिल है। तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। पाक फौज गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफियाज, कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीत दी जाएगी। मुल्क को मौशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरा ने गैर कानूनी तारिकीन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर वापस भेजने के हुकूमती फैसले की हिमायत की। आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन की बाइज्जत महफूज वापसी, डिपोर्टेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़्म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। खित्ते की सूरत हाल, सलामती को दरपेश चैलेंजेस, खतरात के जवाब में हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर भी जोर दिया। शुरा ने मस्तूम, हंगू, जोब के शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। मीरानशाह में शहीद सिपाही वारिस खान आबाई इलाके कर्क में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और जवान, रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 27 साल के वारिस खान 16 अक्टूबर को मीरानशाह में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद हुए थे। मौलाना फजल रहमान का तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा, कहा वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी इंतशार और खलफशार से जमहूरियत मजबूत होगी, न मुल्की मसाइल हल होंगे। मुल्की मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीन की कंपनीज को शमसी तवानाई के मैदान में सरमायाकारी की दावत। चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से खिताब में अनवारुल हक काकड़ का कहना था
चीन और पाकिस्तान गवादर को इलाकाई रवाबित का मरकज बनाने के लिए पुरज़्म है। सी पैक सिर्फ इक्तिसादी राहदारी नहीं, एक दूसरे पर एतमाद की निशानी है। निगरां वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा, बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज है। सदर शी जिनपिंग की दावत और पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शुक्रगुजार हूँ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बीजिंग में केनिया के सदर से मुलाकात। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक तफ्तीश में ताउन की दरख्वास्त। सदर ARY न्यूज अमाद यूसुफ बगावत के झूठे मुकदमे से बरी, मुकदमे की कार्रवाई खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का तारीखी फैसला। तहरीरी फैसले में कहा गया, हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल खौफ और अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा करता है। अमाद यूसुफ के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई, उससे मीडिया में खौफ फैला। खौफ के माहौल से इदारों से नफरत पैदा होती है। खौफ में मीडिया भी आजादाना काम नहीं कर सकता। हुकूमत नाखदों और सियासी मुखालिफों को दुश्मन ना समझे, ये यकीन करना मुश्किल है। अवामी नुमाइंदे, सहाफी, सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। जमहूरी हुकूमत को मस्बत तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए और आजाद माहौल फराहम करना चाहिए। वर्ल्ड कप में 3 दिन के दौरान दूसरा बड़ा अपसेट। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। धर्मशाला में 246 रन हदफ के ताकुब में प्रोटियाज की मजबूत बैटिंग लाइन डच बॉलर्स के सामने बिखर गई। आधी टीम 89 रन पर पवेलियन लौट गई और पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई। डेविड मिलर 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रॉगन के 3 विकेटें। नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 43 ओवर में 245 रन बनाए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 78 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उन्होंने कप्तानी बहुत जबरदस्त की, बॉलिंग चेंजेस बहुत जबरदस्त थी। ये अपसेट है, लेकिन नीदरलैंड के लिए ये वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं। लोगों का ख्याल था साउथ अफ्रीका बहुत ही बड़े मार्जिन। नीदरलैंड्स के कप्तान ने अच्छी कप्तानी की। जनूबी अफ्रीका की शिकस्त से इवेंट दिलचस्प हो गया। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, जनूबी अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। बासित अली बोले, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीता तो वो अपसेट नहीं होगा। MGM रहनुमा फारूक सत्तार बने मेहमान। वसीम बादामी के साथ खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा खलीलुर रहमान कमर का। आदि के दिलचस्प चुटकुले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का मिशन। कौमी टीम का बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन। कौमी खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी समेत 6 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया। बड़े मुकाबले से पहले कौमी खिलाड़ी बीमार पड़ गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और शाहीन आफरीदी को तेज बुखार। लेग स्पिनर उसामा मीर की तबीयत 5 दिन से नासाज थी। एहतियात के तौर पर मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए जो क्लियर आए। रिजर्व में मौजूद जमान खान भी बीमार। तर्जुमान PCB का कहना है खिलाड़ियों को वायरल इन्फेक्शन या डेंगू नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच जुमे को बेंगलुरु में खेला जाएगा। पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन को भारतीय वीजे मिलने में ताखीर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर ICC को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले का नोटिस ले। फैंस और मीडिया वर्कर्स को वीजों के इजरा में टाल मटोल पर तशवीश है। PCB ने पाक भारत मैच में कौमी टीम के साथ नारवा सलूक की भी निशानदेही की। अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाद भारतीय शायकीन के नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ा था। दुश्मनी कम हो जाए तो नेताओं की दुकान कैसे चलेगी? भारत की नामवर स्पोर्ट्स सहाफी और राइटर शादरा ओगरा कहती हैं कि ARY न्यूज से गुफ्तगू भारतीय हुकूमत की जानिब से वीजे की झंझट शर्मनाक थी। कहा, मेरा बेहतरीन इंटरनेशनल दौरे पाकिस्तान का था। मैच कवर करने और खाना खाने में बहुत मजा आया। दुख होता है अब पाकिस्तान इंडिया टूर नहीं हो रहे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। नैब तरामीम कलदम होने के बाद इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस बहाल हुआ था। आम इंतखाबात की तैयारियां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत कराची में अहम इजलास। इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। राजा सिकंदर सुल्तान ने कहा इंतखाबात में फौज और रेंजर्स की भी मदद ली जाएगी। गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। इंतखाबी अमल में कोताही पर अहलकारों अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में चारों सूबाई मेंबर्स की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा पोलिंग स्टेशन पर तमाम तर सहूलतों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। चिकन बिरयानी और 125 मोटरसाइकिल के बाद जलसे में शिरकत के लिए नून लीग की एक और फखरिया पेशकश। लीगी रहनुमा कारकुनान को जन्नत के टिकट बांटने लगे। गमालिया में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी असदुर्रहमान ने कहा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाने वाले सीधे जन्नत में जाएंगे। पाकिस्तान और हंगरी की फिजाई अफवाज के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। हंगरी के एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जोसेफ कॉलर का वफ्द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मुश्तरका ताउन, अस्करी टेक्नोलॉजी और तरबियती प्रोग्राम्स में बाहिमी इश्तराक के लिए नई राहें इस्तवार करने का अज़्म। हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चौबंद दस्ते का ब्रिगेडियर जनरल जोसेफ कॉलर को गार्ड ऑफ ऑनर। हंगरी के अस्करी वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स में कायम मुख्तलिफ तनसीबात और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा। वफ्द ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने में किरदार अदा करे। आलमी बरादरी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत और बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत तस्लीम करे। इंसानी अलमिये पर आलमी ताकतों की खामोशी मुजरमाना है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। इसराइली जाहिरियत पर आलमी ताकतों की मुजरमाना चश्मपोशी पर एहतजाज। राजा ज़फ़रुल हक की सरबराही में कौमी अल-कुद्स कमेटी के क़याम की तजवीज़। कमेटी मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते करेगी। इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट पर इत्तफाक। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। सिराजुल हक ने कहा उम्मा को पैसे और असलहे से ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। इसराइल गजा पर वहशियाना बमबारी फौरी बंद करे। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में तलबा फलस्तीनियों के हक में निकल आए। मुजाहिरीन ने फलस्तीन की आजादी के लिए नारे लगाए। आलमी बरादरी से हमले रोकने में किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरीन जमा हुए, फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मिशिगन यूनिवर्सिटी में हजारों तलबा का निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म बंद करने का मुतालबा। बॉस्टन में भी हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले। पेरिस में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे पर पुलिस टूट पड़ी। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड पर अफगान शहरियों को पासपोर्ट जारी किए गए। अफगान शहरियों ने सफर किया। पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट जारी होने की तहकीकात का आगाज। जाली पासपोर्ट पर सफर करने वालों की फहरिस्त से इंक्वायरी कमेटी को मिल गई। कमेटी नादरा से भी अफगान मुहाजिरीन का डाटा हासिल करके स्क्रूटनी करेगी। कमेटी पासपोर्ट पर रवानगी की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इदारों की मिलीभगत का तयन करेगी। 15 दिन में नताइज और सिफारिशात सेक्रेटरी दाखिला को पेश करेगी।
پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں پہلی بار کامیابی حاصل کر لی۔ اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ہوم لیگ میں پاکستان نے کمبوڈیا کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کا واحد گول ہارون حمید نے 68ویں منٹ میں کیا۔ پاکستان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کامیابی پر کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار خاتون کوچ کی تقرری، ملتان سلطانز نے آئرلینڈ کی کیتھرین ڈالٹن کو فاسٹ بالنگ کوچ مقرر کر دیا۔ کیتھرین ڈالٹن ٹاپ لیول پر مینز ٹیم کی پہلی خاتون بالنگ کوچ ہیں۔ کیتھرین نے 4 ون ڈے اور 4 انٹرنیشنل T20 میچز کھیلے۔ اور گوادر میں 5ویں آف روڈ ریلی کا آغاز، ایونٹ میں رجسٹریشن کا عمل جاری۔ موٹر سائیکل ریس کے مقابلے آج سے شروع ہوں گے۔ آف روڈ ریلی کے دوسرے مرحلے میں گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل 19 تاریخ سے شروع ہوگا۔ آف روڈ جیپ ریلی میں ملک کے معروف ریسرز کے علاوہ ایران سے بھی ریسرز حصہ لیں گے، جو کہ 200 کلومیٹر طویل آف روڈ ٹریک پر جیت کے لیے قسمت آزمائی کریں گے۔